ये बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट जो लागू हुआ 1793 में, उसमें 1799 में वेलेस्ली ने एक मॉडिफिकेशन किया था। सीपीसी के ऑर्डर 39 में टेम्पोररी इंजेक्शन है, उसके ग्राउंड क्या है? What is constitutionalism? sir. कम इन। Sir. गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए सत्यम। बातचीत आप हिंदी में करना पसंद करेंगे अंग्रेजी में? I am comfortable in both, sir. बोथ लैंग्वेज। ठीक है, तो अपना परिचय दीजिए। So my name is Satyam. I am from Bhadoi, Uttar Pradesh. I did my basic schooling from Mirzapur. Thereafter, I did my BA LLB honors from HNLU Raipur. And sir, this is my second attempt. Prior to this, I appeared in UP judiciary interviews last year, and this is my second judiciary exam and second interview. Okay, so why did you go to Raipur to do law? I appeared in CLAT exam, sir, and I got the rank suitably. Therefore, I Okay, so through allotment that you got there. So, where do you want to serve in Bihar? Why not in Uttar Pradesh or Chhattisgarh? Sir, as far as Bihar is concerned, I am from Mirzapur. So basically, that is Purvanchal region. Bihar is very You have mentioned your permanent address as Bhadohi. yes, sir. But I presently I stay in Mirzapur. Name of your village is quite interesting. Is it O2H? Ooj, sir. OZH, sir. Okay, Ooj. OZH. Yes. OZN. H. H. Ooj. That looks like O2H. Yes. Okay. So, Bihar is almost similar in... Almost similar, and sir, my mother belong from Bihar, sir. She comes from which place? Buxar. So, I think you have visited several times Buxar? Sir, they moved to Banaras, so Okay. yes, sir. His family moved to Banaras. Your Nanihal has moved from Buxar to Banaras. Banaras, yes, sir. You never visited your original Nanihal, that is Buxar? No, sir. There is kind of family feud. So, your mother must be talking about Buxar. Yes, sir. So, why Buxar is important? Sir, historically, Buxar, there is Battle of Buxar, which took place in 1764 between British East India Company forces and Nawab of Bengal. And What is the name of Nawab of Bengal? sir, at that time, Mir Qasim. And he was alone, or there were other persons also? Sir, if I'm not wrong, sir, Shah Alam II was then. That's true. Yes, sir. Mughal Nawab and Sujauddaulah. Sorry, sir, I'm forgetting his name. Sir, Yeah, Nawab Sujauddaulah is yes, sir, fine. Nawab of Awadh was also his ally. Sir, there was tripartite arrangement to fight against the. So, the three forces, Mughal, UP and Bihar, Bengal. Almost entire North India was in the one side. Kind of. Kind of. And Britishers were on the other side, and who were fighting with Britishers in their favor, in their party? अंग्रेजों के साथ कुछ तो रहे होंगे लोग, लोकल लोग। नेटिव इन्फेंट्री थी सर, जहाँ तक मुझे याद है, और पार्टीज मुझे नहीं याद है। मीर जाफर जिंदा थे कि गुजर गए थे तब? मीर जाफर जिंदा थे सर। वो किसके साथ थे? मीर कासिम के साथ या अंग्रेजों के साथ? मीर जाफर सर, जहाँ तक मुझे याद है, वो न्यूट्रल पार्टी थे। वो अपने थ्रोन को बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों के साथ अलाई थे, लेकिन फोर्सेस उनके पास सफिशिएंट थी नहीं, तो काइंड ऑफ सपोर्ट था उनको। ब्रिटिश ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनके पास फोर्सेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ उस लड़ाई में? अंग्रेज जीत गए? यस सर, दैट बैटल काइंड ऑफ proved to be decisive because that was kind of first battle in which military might of British crushed the North Indian major powers, and it paved way for colonization of entire. Why this combined forces of Shah Alam and Sujauddaulah and Mir Qasim got defeated? क्या गलतियां थी या क्या कमजोरियां थी इनके? सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है सर कि टेक्नोलॉजिकली इंडियन फोर्सेस उसमें बैकवर्ड थी। अच्छा, कैसे हम ये कह सकते हैं? क्या क्या टेक्नोलॉजिकल टूल्स थे ब्रिटिश के पास? सर, उस समय सर जैसे मैच लॉक थे और बाकी जो हैंडल्ड वेपन्स थे, वो यूरोपियन ग्रेड के स्टैंडर्ड हुआ करते थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैच लॉक क्या होता है? सर, काइंड ऑफ वेपन होता है जो आगे से मतलब सर मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ सर, मतलब एक तरह का गन होता है ये? हाँ, यस सर, सिंगल थॉट वेपन होता है, उसको आगे से लोड किया जाता है और उस तरीके से। और ये इनके पास नहीं था, मुगलों के पास? सर, इंफीरियर ग्रेड्स के थे, उन्होंने फ्रेंच से एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन तो ये कहा जाता है कि बाबर वन द बैटल विद इब्राहिम लोदी एज वेल एज राणा सांगा बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर आर्टिलरी। यस सर, गन पाउडर एम्पायर। तोप खाना उनके पास अच्छा था। तो जब बाबर के पास तोप खाना था
तो उनके वंशज सालम के पास वो नहीं था। सर अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे सर तो 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी में यूरोप ने जितना टेक्नोलॉजिकली एक्सपैंड किया, मिडाइवल मुस्लिम एम्पायर्स उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर पाए थे। तो जैसे बाबर की बात कर रहे हैं तो बाबर चंगेज़ खान मुगल डायनेस्टी से अपने आप को ट्रेस करता था। तो इनिशियल पीरियड्स में मंगोल्स जो थे वो हॉर्स कैवलरी के लिए और गन पाउडर एम्पायर्स के लिए वो फेमस थे। लेकिन धीरे-धीरे आफ्टर फॉल ऑफ बगदाद मुस्लिम वर्ल्ड में स्टैग्नेशन आ गया और उसी के कन्वर्सली यूरोपियन वर्ल्ड डेवलप होते गए। तो 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच में सर यूरोपियंस ने काफ़ी एडवांसमेंट किया और जो गन पाउडर एम्पायर्स थे सर, जो तीनों ऑटोमन एम्पायर, सैफेविड एम्पायर एंड इंडियन मुगल एम्पायर। तो सर इन लोगों में स्टैग्नेशन आ गया था, टेक्नोलॉजिकली इतना सुपीरियर ये बन नहीं पा रहे थे। लेकिन कन्वर्सली ब्रिटिश, चाहे वो फ्रेंच हो, यूरोपियंस जनरली दे वर एडवांस। ये आपने सही एनालिसिस किया है। तो जैसे-जैसे मुगलों का पतन होता गया, वैसे-वैसे बिहार और यूपी का भी पतन होता गया, क्योंकि ये Political उन्हीं का शासन था। जैसे पॉलिटिकल पावर के तौर पे पतन होता गया, लेकिन सर कमर्शियली और बिजनेस पर्पस के लिए यूपी और बिहार उसमें काफ़ी एक्सपैंड हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? जब स्टेट पावर वाज डिक्लाइनिंग, तो हाउ कुड इकोनॉमी कंटिन्यू टू ग्रो? सर स्टेट का सपोर्ट था बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। तो सपोर्ट तो था स्टेट का, लेकिन स्टेट अपने आप में सर, जैसे मेरा जो एनालिसिस रहा है सर कि मिडिवल पीरियड में स्टेट नॉर्मल पीपल्स का स्टेट के साथ उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होता नहीं था। पॉलिटिकल पावर चेंज होते रहते थे, खासतौर पे नॉर्दर्न इंडिया में। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हमेशा चेंज होती रहती थी, लेकिन जो पीपल हुआ करते थे वो एक तरीके से वो साइलेंट अंडर करंट की तरह वो हिस्ट्री चलते आपने बड़े ध्यान से पढ़ा है। ये बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट जो लागू हुआ 1793 में, उसमें 1799 में वेलेस्ली ने एक मॉडिफिकेशन किया था। वो क्या था और कैसे ये फैटल हो गया यहाँ के लोकल फार्मर के लिए उस मॉडिफिकेशन की वजह से? ओरिजिनल फार्मर सेटलमेंट उतना खराब नहीं था, मतलब खराब तो था, बट इट बिकेम मोर हार्मफुल आफ्टर द मॉडिफिकेशन इन 1799। सॉरी सर, आई कैन कोई नॉट बात नहीं, रिकलेक्ट। ठीक है। सत्यम जी, यस आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर ऐसे तो एसआरए मुझे पसंद आता है सर। सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंजेक्शन के ग्राउंड कौन कौन से हैं बताइए। इंजेक्शन का सर अगर एक लाइन में समराइज किया जाए सर, ग्राउंड तो वही है कि आपके लीगल ऑब्लिगेशन का वायलेशन किया जा रहा है और आपके लीगल राइट का वायलेशन किया जा रहा है। आपका लीगल राइट है तो कन्वर्सली सेकंड पार्टी पे लीगल ऑब्लिगेशन है, और अगर आपके लीगल ऑब्लिगेशन का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे इंजेक्शन तो दिया जा आपका सब्जेक्ट फेवरेट बड़ा वो नहीं है कि आप एक माइनर सब्जेक्ट को अपना फोकस कर रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट सब आपने छोड़ ही दिया? नहीं सर, सब्जेक्ट सारे पसंद है सर। एसआरए चूँकि सर इक्विटी से काफ़ी सीपीसी के ऑर्डर 39 में टेम्पोररी इंजेक्शन है, उसके ग्राउंड क्या है? 4 ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं नहीं। सर, बात ये है सर कि अभी यूपी के पीसीएस के एग्जाम्स पे है चलिए वो कोई नहीं 27th कोई पे, तो नहीं मैं कोई पूरी नहीं। तरीके से उसी में लगा हुआ था। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, उसमें क्या डिफरेंस है? रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के सॉरी सर, मैं चलिए अब नॉर्मल सा एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सिमिलरिटी है? एक सिमिलरिटी हमको बता दीजिए और एक डिफरेंस बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सर दोनों स्टेट और पीपल के बीच के रिलेशन को एडमिनिस्टर करता है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, whether this statement is right or wrong? Sir, if you draw two circles, they both intersect but did not overlap. How? एडमिन लॉ के आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसलिए मैंने ये पूछा। चलिए अभी अभी चंद्रचूड़ साहब ने एक नोशन चेंज किया और उसमें न्याय की देवी में आंखों से पट्टी हटा दिया और पीछे तलवार हटा दिया। तो क्या ये नोशन आपके हिसाब से सही है? यस सर, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि न्याय की देवी आई कैसे, लेडी ऑफ जस्टिस आया कैसे, कैसे आया? सर ये ग्रीक कंसेप्ट था, ग्रीक और रोमन एक कंसेप्ट है। तो वहाँ पे जस्टिशिया को ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस माना जाता था। तो वहाँ ग्रीक में इसको क्या कहा जाता था? जस्टिशिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
जस्टिस कहा जाता था। चलिए, तो क्या ये नोशन सही है? Yes, sir, I believe it is. सही है। तो अगर मान लीजिए आपको एक लॉ बनाना है, आप एक लॉ मेकर बनी, यार जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट क्यों है? अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, इफ एनी पर्सन कमिटेड एनी टाइप ऑफ ऑफेंस, तो जुडिशरी उसको क्या देता है? पनिशमेंट देता है। तो अगर हम पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही हटा ले, लॉ से हटा दें, तो आपकी क्या ज़रूरत है तब? सर, जुडिशरी केवल पनिशमेंट के लिए ही नहीं बना है सर, जुडिशरी इज़ अ टूल ऑफ रिफॉर्मेशन सर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ सर, जैसे बार एनरोलमेंट अभी हुआ करते थे सर, तो अभी कुछ समय पहले तक बार एनरोलमेंट में एक्सेसिव फीस लगे करती थी। अब लोअर जुडिशरी का काम क्या है? सर सेम एज़ हायर जुडिशरी सर, टू सर्व सेम एज ए हायर जुडिशरी। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लोअर जुडिशरी सुनती है? नो सर। तो इंटरप्रिटेशन का काम तो हायर जुडिशरी का है। लोअर जुडिशरी क्या करती है? बेसिकली वो काम करती क्या है? सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स जो प्राइमा फेसी अराइज होते हैं सर, उनको डील करने का काम उनको डील करती है, उनका डिसाइड करती है कि डिस्प्यूट क्या है, क्या नहीं है। और कोई इंटरप्रिटेशन का तो काम करती नहीं। इंटरप्रिटेशन का काम आपके हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का है, जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 130 ये 129। 129। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्या? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द सेंस कि यहाँ के जो प्रोसीडिंग्स होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनके जजमेंट प्रेसिडेंट की तरह यूज़ किए जाएंगे। बस, और कुछ है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सिर्फ यही है कि जजमेंट को रखा जाएगा, उसको प्रेसिडेंट की तरह यूज किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी है उसका? सॉरी मैं उसमें 2-3 जजमेंट भी थे। दिल्ली बार एसोसिएशन बनाम क्या कहते हैं गुजरात राज्य का, स्टेट का। एक जजमेंट आपका क्या कहते हैं इंद्र विनय मिश्रा का, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी चीज़ें गाइडलाइन जारी की। Yes. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर मैं एग्जांपल से बता सकूं सर, हाँ बताइए। तो जैसे अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है तो बाकी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उसको इन्फोर्स करवाया जाए। स्टेट का ऑब्लिगेशन है। यस सर, स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि जिसके अगेंस्ट में जजमेंट पास हुआ है उसको इन्फोर्स करवाया जाए। तो अगर वो जजमेंट का अनुपालन नहीं हो रहा है तो उस सिनेरियो को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में। उसको चलिए, तो एक चीज़ और बताइए हमको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति ये चीज़ जानता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य विधि के विरुद्ध है, अर्थात अगेंस्ट द लॉ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं और वो व्यक्ति आता है और ये कहता है कि मैं तो ये जानता था कि लॉ के विरुद्ध है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो था वो उद्देश्य किसी को जस्टिस देना था, तो क्या इस बेसिस पे एज ए जुडिशियल ऑफिसर आप उसे रिलीज कर देंगे? हाँ। तो अंडर द क्रिमिनल लॉ मोटिव का क्या मतलब है? मोटिव फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी एक्ट के पीछे मोटिवेशन का काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। अगर मोटिव वो अच्छा है तो कोर्ट क्या हमको छोड़ नहीं सकता? क्रिमिनल मैटर में मोटिव रेलेवेंट नहीं होते हैं सर, इंटेंशन रेलेवेंट होते हैं। मोटिव के आधार पर सर कुछ जजमेंट में ये कहा गया था कि पनिशमेंट की ग्रेविटी इफेक्ट हो सकती है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके आधार पे वो एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता क्रिमिनल लायबिलिटी से। चलिए, एक सीआरपीसी का भी सवाल बता दीजिए। बेल एंड बेल बॉन्ड में क्या अंतर है? सॉरी सर। बच्चन सिंह का केस आपने पढ़ा है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यस सर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट प्रिंसिपल का प्रोफाउंड क्यों किया गया? क्या ऑब्जेक्ट था उसके पीछे? सर इंडिया एज अ स्टेट, सर हम पुलिस स्टेट से इवॉल्व होकर वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे थे सर। कैपिटल पनिशमेंट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस लगातार देना, वो कहीं ना कहीं हमारे मिडवल प्रैक्टिसेस को दर्शाता था। तो इसीलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को हम प्रोपाउंड किया गया था कि कैपिटल पनिशमेंट के एम्बिट को नैरो डाउन किया जा सके, ताकि जो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं केवल उन्हीं में कैपिटल पनिशमेंट दिए जाए। तो जगमोहन के केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया फिर? अगर हम इसकी तरह जा रहे थे और हमने कहा कि हम वेलफेयर स्टेट हो गए हैं, तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी को, अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो हम उसको सजा ही ना दें। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का विकास अच्छे ढंग से हो सके
और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको हम रिसोर्स प्रोवाइड कराएं। इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम कोई अगर व्यक्ति क्राइम कर रहा है, दूसरों की प्रॉपर्टी छीन रहा है, किसी महिला का रेप कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम डेथ पेनल्टी ना दें। ये तो वेलफेयर स्टेट नहीं कहता। और क्या वेलफेयर स्टेट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है? अगर यूज किया गया है तो कहाँ पर है? नो सर, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ तो नहीं किया गया है सर। और सर बात पनिशमेंट की है सर, तो पनिशमेंट आईपीसी में कई तरीके के दिए गए हैं। सेक्शन 53 के सर अगर रीड करें आईपीसी में, तो पनिशमेंट तो कई तरीके के दिए गए हैं। डेथ पेनल्टी जो है सर, वो एक्सट्रीम केसेस में ही दिए तो जाते हैं। चलिए आप बता दीजिए आईपीसी में कहाँ डेथ पेनल्टी दिया हुआ है? आपको पता है किस किस सेक्शंस में है? हाँ बताइए। सर रेप केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है सर। रेप केसेस में तो अभी आया है, पहले कहाँ था? सर 2013 सर जीएस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सर रेप ऑफेंसेस में डेथ। तो किस किस कंडीशन में वहाँ पे रेप है? नॉर्मली रेप में तो सर नॉर्मल रेप में नहीं सर, अंडर 16 वाले कैटेगरी में सर। वो सर मैं भी एग्जैक्ट में रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर उसका। एग्जैक्टली। चलिए ओके, थैंक यू। How is anticipatory breach of contract treated under the Indian Contract Act? मैम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैम यहाँ दो तरीके के सिनेरियो बनेंगे। अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सामने वाली पार्टी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, तो कंपनसेशन दे के वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से उसको एब्सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इंटीमेशन दे दी गई है और सामने वाली पार्टी ने कंपनसेशन के लिए डिमांड नहीं किया है और बाद में टाइम ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आने पे एक्चुअल ब्रीच वहाँ हो जाता है, तो फिर सेकंड पार्टी को वहाँ पे कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है। अगर आपके फादर आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कार लेके देंगे अगर आप जुडिशियल सर्विसेज क्वालिफाई कर देते हैं, क्वालिफाई आप कर भी जाते हैं, लेकिन वो आपको कार नहीं लेके देते, तो क्या आप इस अग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं? मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल लीगल एग्रीमेंट जो है उन्हीं को इन्फोर्सिबल करवाया जा सकता है, जिसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ही इन्फोर्सिबल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी आती है। ये सोशल एग्रीमेंट है, तो मैम इसमें ये इन्फोर्सिबल नहीं रहेगा। किस वजह से, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी वजह से ये अग्रीमेंट आपके हिसाब से लीगल नहीं है? मैम अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगर लीगल बनाना चाहूँ, तो फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ कर दूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको एफिडेविट पे करके और दिखाऊँ कि मैं यहाँ पे लीगली इन्फोर्स कराना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ पता चलता है कि यहाँ लीगल इंटेंशंस हैं। लेकिन अगर ऐसे बात की जा रही है, तो ये सोशल एग्रीमेंट है मैम एक। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटन फॉर्म में हो, एफिडेविट पे हो तो ही एनफोर्सेबल है, अदरवाइज नहीं? मैम ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल है, बट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज़ अ मैंडेटरी फैक्टर। कौन सा केस था जिसने इस प्रोपोजिशन को होल्ड किया था? मैम कई केसेस थे मैम। लैंडमार्क बताइए। मैं केस का फैक्ट मुझे याद है, मैं नाम इस समय भी भूल गया हूँ। Balfour versus बेलफर इसमें सैलून वाला केस इसमें। What is constitutionalism? मैम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म implies limited government. State shall be limited to its extent to basic purposes and shall not interfere and excessive state का कंट्रोल नहीं होना चाहिए एंड सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड होने चाहिए स्टेट के अगेंस्ट में, बिकॉज स्टेट इज डीम्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट इज डीम्ड टू बी द बिगेस्ट एग्रेसर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है? मैम फेडरलिज्म स्टेट और यूनियन, मतलब यूनियन के दो कंस्टिट्यूएंट स्टेट और सेंटर के बीच में पावर रिलेशन कैसा होगा उसको गवर्न करने वाला डॉक्ट्रिन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बात जब आ जाती है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसा है कि स्टेट और यूनियन आपस में कम्पीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सिटीजन का वेलफेयर हो सके, स्टेट डेवलप कर सके। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट और यूनियन में कोऑपरेशन रहेगा और पॉलिसीज इस तरीके से रहेंगी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रन करें, ना कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। मैम जैसे स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो उनकी सर्विस किस तरीके से मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर
मैम मैं वर्ड में उसको इसमें कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब बेसिक पर क्रक्स इसका यही है कि जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनकी सर्विस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहेगी, प्रेसिडेंट के कहने पे उनको निकाला जा सकता है कि नहीं, ये पर मैम Can you explain the significance of the 3 Panipat battles that were there? और किन-किन के बीच में हुए और हिस्टोरिकली वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या था उनका इम्पैक्ट? मैम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पानीपत एक स्ट्रेटजिक लोकेशन हुआ करता था। मैम जितने भी इन्वेडिंग फोर्सेस थे जो नॉर्थ से आया करती थी, दिल्ली के पहले जो प्लेन बैटल ग्राउंड मिला करता था, वो पानीपत का दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी में अच्छा रहता था। दिल्ली के एम्पायर्स पानीपत को इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि मिडिवल इरा में बैटल लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था। तो दिल्ली के पास में ओपन ग्राउंड जहाँ पे आराम से इन्वेडिंग आर्मी को इनसर्कल किया जा सके, तो उसके लिए पानीपत एक सूटेबल लोकेशन था। मैम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में मुगल एम्परर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। बाबर इसमें विक्टोरियस रहा था और ये मुगल एम्पायर की इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट का पहला वॉर था। उसके बाद वो इंडिया में कंसोलिडेट होते गए। मैम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में वही थर्ड ग्रेट मुगल अकबर की आर्मी लेड बाई बैरम खान और शेर शाह सूरी का कमांडर, पहले का कमांडर ये हेमूचंद के बीच में लड़ा गया था। अकबर इसमें विक्टोरियस रहा था और उसके बाद अकबर ने अल्टीमेटली वेंट ऑन टू रूल फॉर 49 ईयर्स टिल 1605। थर्ड बैटल पानीपत में 1761 में मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर अब्दाली एम्पायर के बीच में लड़ा गया था। मैम ये इस बैटल के बाद मतलब एज फार एज आई नो मैम ट्रेडिशनल वॉर जो हुआ करते थे जिसमें वेपन गन पावर से ज़्यादा तलवारें यूज़ की जाती थी, इसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा अगर फर्टिलिटी हुई थी तो मैम इसी वर्ल्ड बैटल में हुई थी। लगभग 90,000 कम्बैटेंट दोनों पार्टी की तरफ से मारे गए थे। तो पायरिक विक्ट्री मैम एक टर्म यूज़ किया जाता है ग्रीक सेंस में कि दोनों पार्टी मतलब लड़ाई तो जीत गए लेकिन ना सामने वाली पार्टी कम्पिटेंट बची, ना ये वाली पार्टी कम्पिटेंट बची। तो इसने मराठास के नॉर्दर्न एक्सपेंशन की जो एम्बिशन थी उनको कंट्रोल कर दिया और दुर्रानी एम्पायर भी अब अपने आप में काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो फिर आगे इंडिया पे फिर फर्दर इन्वेड नहीं कर सके। जनरल ऑफर और क्रॉस ऑफर का डिफरेंस बताइए मुझे। मैम जनरल ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज के लिए रहता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और जनरल ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है बाई परफॉर्मेंस से। क्रॉस ऑफर मैम दोनों पार्टी अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स ऑफर, एक दूसरे को ऑफर करें जिनकी कंडीशन सिमिलर रहें लेकिन दोनों एक दूसरे से अवेयर रहें, तो उनको क्रॉस ऑफर कहा जाता है ना। सत्यम, यस सर। फैमिली कोर्ट क्या होता है और कब इसकी शुरुआत हुई? सर फैमिली कोर्ट सर फैमिली अफेयर्स, मैट्रिमोनियल अफेयर्स और फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के जो अफेयर्स होते हैं सर, इनको देखने के लिए है सर। सॉरी सर मैं शुरुआत में याद नहीं है। कानून बना था फैमिली कोर्ट एक्ट, ये कब बना? नो सर। कोई बात नहीं। कंज्यूमर कोर्ट क्या होते हैं? सर कंज्यूमर कोर्ट एक क्वाज़ाई जुडिशियल अरेंजमेंट है जहाँ पे कंज्यूमर केसेस बायर एंड सेलर के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं सर, उनको डील करने के लिए बने हैं सर। और वो कोर्ट किस कानून के तहत शुरू किए गए हैं? सॉरी सर मैं अभी अवेयर कोई नहीं हूँ बात नहीं। ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं? सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशल मैटर्स को डील करने के लिए बनाए जाते हैं सर। फॉर एग्जांपल पॉक्सो के लिए मैं कमेटी का नाम बोल रहा हूँ सर, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पॉक्सो मैटर से डील करने के लिए बनाई जानी चाहिए, जो इस तरीके के पॉक्सो है और कोई है? पॉक्सो का फुल फॉर्म बता सकते हैं? सर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2005। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये सर। ओके, ये कब बना? सर 2012 का एक्ट है सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, लोक अदालत क्या होता है और क्या उपयोगिता है? लोक अदालत सर जो पेटी मैटर्स होते हैं सर, उनको पेटी मैटर किसको कहते हैं?
सर ऐसे सीआरपीसी के सेंस में सर जो 1000 रुपीज़ से कम या मैक्सिमम जिसमें 1000 रुपीज़ तक के फ़ाइन हो, और ऐसे सर नॉर्मल पार्लेंस में सर जैसे ट्रैफिक वायलेशन के मैटर्स होते हैं या नॉर्मल चालान वाले मैटर्स होते हैं या सर बैंक लोन्स के जो मैटर होते हैं सर, लोक अदालत में उसका डिस्पोजल आसान है। ठीक है। पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? सर सीआरपीसी के अनुसार सर पीटी ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिसमें मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक का फ़ाइन दिया जा सकता है। और सर सेक्शन 206 सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल हों या जिनमें मैक्सिमम 3 मंथ्स की पनिशमेंट हो, उनको भी वो पीटी ऑफेंसेस के केस में फॉर द पर्पस ऑफ 206 सीआरपीसी। चलिए ठीक है सत्यम, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। मैं कम सर। आइए बैठिए सत्यम। यूपी में कितने अंक प्राप्त हुए थे? सर यूपी में सर मेरा 559 था सर, 31 नंबर से रह गया था। और इंटरव्यू में? तो इंटरव्यू में 72 मिला था आउट ऑफ 100 से। 100 में 72 आ गया। यस सर। बहुत अच्छा नंबर था। यस सर। तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आपसे? सर यूपी में सर बेसिकली सर बात चालू हुई थी कि मेरा बीए एलएलबी था, तो उन्होंने पूछा कि आपके आर्ट के भी सब्जेक्ट रहे होंगे, तो पूछा कि सोशल साइंस थे या पॉलिटिकल साइंस थे, तो मैंने ओके कहा। तो उसके बाद सर बेसिकली वो ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले और सोशल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस के ज़्यादा पूछे गए? यस सर, ज्यूरिस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें आप कंफर्टेबल थे? यस सर। आज लॉ में बहुत सारी जगह पे तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल लग रहे थे। सर मैं पिछले 6 महीने से सर एकदम इस समय डाइवर्ट हूँ सर, सिविल्स में लगा हुआ था। तो अच्छा, कटे हुए हैं इससे? यस सर, अभी 3 दिन सिविल्स पहले। में आपका ऑप्शनल क्या हिस्ट्री है? सर लॉ ऑप्शनल है। लॉ ऑप्शनल है? यस सर। लॉ तो पढ़ ही रहे होंगे? नहीं सर, मतलब अभी यूपी में पीसीएस होने वाला है। यस सर, 27 को होना था, अभी 2 दिन पहले उसको नोटिफाई हुआ है कि नहीं होगा। सर अभी 2 दिन पहले तक मैं उसी मूड में था कि 27 ये फाइनल कर दूंगा, उसके बाद 20 दिन। बहरहाल तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि थोड़ा सा लॉ रिवाइज करना हाँ, पड़ेगा। मैं 20 नवंबर में अभी वक्त तो आपके पास 1 महीना है। यस सर। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। यस सर। सामान्य बातें ये है, और बिहार के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यस सर। बैटल वगैरह तो आपने बक्सर सही बता दिया। यस सर। लेकिन हो सकता है हिस्ट्री कम पूछें। यस सर। वो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे हिस्ट्री पूछा गया, उसमें आपने बताया तो हम लोगों ने और आगे सवाल पूछा। यस सर। हो सकता है वो डोमेन ना टच करें। यस सर। तो बिहार का जो जनरल चीज़ है कि जो पिलर्स ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, यस सर। कौन उसके ऑफिस बियरर्स हैं, और बाकी भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको बिहार से थोड़ा लगाव है। यस सर। तो वो लगाव के लिए वो हो सकता है कि कल्चरल डोमेन में जो अचीवमेंट्स हैं वो भी पूछ लें। यस। बिहार का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि कितने डिविजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने Yes, पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने पुलिस रेंजेस हैं, ये भी पूछ सकता है। कोई एक मेंबर इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसमें चूँकि समय ज़्यादा लगना नहीं है, बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाइए यस सर। और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए। यस सर। मुझे लगता है कि 4-5 घंटे लगाएंगे बिहार सरकार के वेबसाइट पर और 1-1.5 घंटा लगा देंगे पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, तो प्रचुर जानकारियाँ आपको प्राप्त मिल जाएंगी। ओके सर। वो सब तैयार करिएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और अच्छा भी रहेगा। थोड़ा सा मैप रीडिंग वगैरह भी आपने किया ही होगा वैसे बिहार यस का। सर, मैप रीडिंग में कौन से जिले यूपी से लग रहे हैं, कौन से बंगाल से लग रहे हैं, कौन से नेपाल से लग रहे हैं, वो सब देख लीजिएगा। और लॉ में जो बारीकियां हैं वो तो वो पूछ ही सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंसिकल चीज़ें जो हैं, क्योंकि हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, यस सर, लेकिन एक आम आदमी का जो क्यूरियोसिटी हो सकता है लॉ के बारे में, यस सर, कि भाई हम जब कचहरी में, कोर्ट के परिसर में प्रवेश करते हैं यस सर, तो वहाँ किस किस तरीके के वर्कर मिलते हैं जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यस नॉट नेसेसरली जुडिशियल ऑफिसर्स, और भी एक स्टाफ होता है। तो उसमें क्या क्या शब्दावली है उससे थोड़ा सा अवगत होने के लिए तो वो पूछ सकते हैं। कॉमन सेंसिकल बात है कि भाई मुंसिफ कोर्ट किस लेवल पे होता है, सब डिविजनल लेवल पे कौन कौन से जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होता है, कैसे जस्टिस इम्पार्ट की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है। एक आम आदमी अगर अप्रोच करना चाहे, उसको कोई मदद चाहिए, तो वो क्या एक आम आदमी को आप समझाना चाहते हैं, या उसको एक मे आई हेल्प यू जैसा डेस्क शुरू करना चाहते हैं, एक इनोवेशन आप करना चाहते हैं, आपको बना दिया जाए। सब डिविजनल लेवल पे अगर आपके अपॉइंटमेंट हो तो मे आई हेल्प यू जैसा डेस्क, आजकल कस्टमाइजेशन है,
Yes, sir. तो कोर्ट में भी क्या एक मे आई हेल्प यू डेस्क होना चाहिए जिसमें कि सामान्य जानकारी दिया जाए एक आम आदमी को कि वो कैसे कैसे प्रोसीजर को फॉलो करे, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि फास्ट ट्रैकिंग जस्टिस पे आजकल बड़ा काम हो रहा है। Yes, sir. वित्त आयोग ने सबसे पहले ये बताया था कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, और अभी 2019 में केंद्र सरकार का एक स्कीम आया है, 800-900 के आसपास फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रहे हैं। हालांकि टारगेट तो फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 1800 ऐसे कोर्ट खोलने चाहिए। तो वही बेसिकली वही कि पेंडेंसी घटाना है। पेंडेंसी अपनी 3 करोड़ से ज़्यादा हो गई है Yes, sir. सारे कोर्ट सिस्टम में मिला के, और ज़्यादातर पेंडेंसी लोकल कोर्ट Local में ही courts है। में, yes, sir. शायद 3.25 करोड़ में 2.5 करोड़ लोकल कोर्ट में ही पेंडेंसी है। तो उसी लेवल पे डिस्पोजल रेट बढ़ाना ज़रूरी है, Yes, sir. और इसीलिए अलग अलग कोर्ट, तो पूरे के स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, डेवलप हुआ है, उस पर कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ा सा वो भी देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द सब्सटेंटिव लॉ एंड द फंडामेंटल्स ऑफ लॉ। Yes, sir. तो एक दफ़ा ये सब कर लीजिए। Yes, sir. और परफॉर्मेंस आपका ठीक है। अच्छी चीज़ें ये है कि आपने एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, यूपी में आपने इंटरव्यू दिया है, अच्छे स्कोर किए हैं, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, ड्रेस अच्छा है, और थोड़ा सा ब्लेजर में क्रीज की कमी दिख रही है, थोड़ा सा हाँ, मुड़ा sir, थोड़ा वो दिख रहा ट्रेन है। में लाते समय सर थोड़ा हो हाँ, गया तो था, उस मैं दिन इसको अपना सही ध्यान करूँगा। रखिएगा, अपना क्रीज व्रीज करा लीजिएगा, Yes, sir. क्योंकि जज का जो ड्रेस होता है ना, वो देखने में अच्छा होना चाहिए। सर टाई ये कलर टाई चल जाएगा, लेकिन और भी एक आध ट्राई कर लीजिए। ठीक है सर. दोस्त वगैरह से ये सब में एक्सचेंज फ्रीली करना चाहिए, उसमें कोई ठीक है. ज़्यादा हैंगओवर नहीं रखना चाहिए। वैसे है, चलेगा ये। ओके ये सर. ब्लैक है ना आपका पूरा? हाँ, यस सर, ब्लैक. ठीक है। और पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को डल लग रहा है, ठीक है सर, मैं चेंज कर लूँगा. एक ट्राई करिएगा एक आध दो। ओके सर, श्योर. और बाकी सब ठीक ही है, बाल वाल आपने सही रखा है, शेव कर ही लीजिएगा। बातचीत का अंदाज ठीक है, शालीनता है, और प्यार से बात कर रहे हैं। आवाज़ का लेवल भी ठीक है, कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा और ऊपर करके बात करेंगे, हल्का सा पिच। ओके सर. अच्छा है। मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा. हाँ, और स्माइलिंग फेशियल एक्सप्रेशन बनाए रखना है। ठीक है। और कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? सर वो जस्टिशिया वाला क्वेश्चन था सर मेरा, मैं सही था वो गलत? नहीं आप सही थे, लेकिन उसका नाम कुछ ग्रीक में है, थेमसिया नाम करके आप जाके देखेंगे ठीक है. तो आपको मिल जाएगा। वो ग्रीक में अलग उसका नाम था, वहीं से ये टर्म ही आया, और फिर उसको इंग्लिश लॉ में स्वीकार किया गया, फिर वही नोशन इंडिया में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो वो आप ये देखेंगे नेट पे तो आपको मिलेगा पूरी हिस्ट्री। समय तो पूरा चर्चा भी हो रही है, डेली न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, कैसे आया कैसे नहीं आया। अभी नोशन डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा उसको आप देखेंगे, और लॉ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो सर ने लॉ कहा, में सर तो आप कॉन्फिडेंट करिए। हूँ, मैं कर लूँगा सर. मैं अभी 6 महीने से एकदम पूरा स्विच था कि हाँ, वो सब माइंड थोड़ा लगवा हुआ है। अभी कोई जनरल सा- क्वेश्चन में भी मैं फंस जा रहा हूँ. मुझे पता है कि मैं बाद में वो सही कर लूँगा, लेकिन नहीं आप मेंस क्वालिफाई किए तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ऐसा मुझे खुद बुरा लग रहा था कि छोटे वाले बेल और बेल बॉन्ड वाला मैं वही जान चीज़। रहा हूँ, लेकिन अभी वही है सर, सेक्शन थोड़ा आगे कोई पीछे हो नहीं, जा एक रहा है. महीना वक्त है। बहुत सिली क्वेश्चन मैं बोलने अभी- नहीं नहीं, वो आपके आपका- ब्रेन में वो कैपेसिटी है, आपने हिस्ट्री का जितनी गहराई से विश्लेषण किया। इसका मतलब आपने अच्छा पढ़ा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू.